Welcome everyone. This is my second video on stock market technical analysis. So in this video we are going to discuss about how to identify the reversal stock. If you remember, in the last video we discussed about how to find out the breakout stock. So what is the difference between the breakout and here I am trying to explain the reversal stock. Breakout stock like stocks which I was trying to do like breakout from the higher level, like the stock is trading 1 year high level or 6 months high level, then will it go further? So these techniques we used in the last video, and how we did that thing with the help of the support and resistance level. So in this video also we'll find out the whether the stock downfall trend has been reversed or not with the same concept, support and resistance level. So it's very important that you have watched the first video, which is about the support and resistance, because in this video I'm not going to explain how we are going to find out support and resistance. I will directly just put the lines and we'll move further. So I will share some of the patterns which I like, and it's very helpful. There are n number of patterns to find out the trend reversal stock, but these patterns are helpful for me and it's doing good, so that's why I'm sharing with you all. So first pattern is double bottom out. Now what does it mean? It means that your stock is in the downtrend, stock is continuously falling from here to here, and it has break the old resistance line, again it is falling, then after that it is start consolidating here, it stops here and start moving up. This is the first thing. Second thing is that after moving up again it consolidated, ऊपर जाने के बाद इसको फिर नीचे आया, फिर यहाँ बॉटम बनाया है, उसके बाद फिर ही ऊपर गया है, और ये जब उसने ऊपर जाना चालू किया तो ये जो इसका जो रेजिस्टेंस लाइन थी, this could also be the resistance line and maybe resistance line can be above also, it depends on the previous data, right? This could be, this is just for the representation point of view, resistance line could be here, could be there. तो मेरा जो रेजिस्टेंस जब इसने क्रॉस किया तब मैं बोलूँगा कि मेरा ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एटलीस्ट नाउ फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट द अदर एक्सपर्ट्स, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट बॉटम आउट। आई कैन नॉट से दैट हेयर यहाँ बॉटम आउट हो गया, मैं यहाँ पर स्टॉक खरीद लेता हूँ, या फिर यहाँ से यहाँ मैं यहाँ पर स्टॉक खरीद लेता हूँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, बट here is the श्योरिटी दैट डाउन ट्रेंड जो था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पर आपका रिवर्स हो गया, ये तो मेरी श्योरिटी यहाँ पर आ जाएगी। सो इट्स बेटर टू, फॉर मी एटलीस्ट, दैट व्हाट आई यूज, लाइक कि बॉटम आउट होने का जब थोड़ा ऊपर आ रहा है, उसके जो पुराने जो रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, तब मैं उसको कहूँगा अब ट्रेंड मेरा रिवर्स होना चालू हो गया है ना। अब इसकी थोड़ा मेंटेलिटी भी समझते हैं कि डबल बॉटम आउट मतलब जो होने के बाद उसका रिवर्स की इतनी अहमियत क्यों है, वाई इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू सी दैट द स्टॉक इज फॉलिंग and whatever was the resistance, it is breaking, but now it start here consolidating। यहाँ पर अब मेरा स्टार्ट होने लगा कॉन्सोलिडेट, क्योंकि एक हद तक गिरेगा उसके बाद तो वहाँ पर संभलेगा ना। और मैं ऐसे शेयर्स की तो बात करूँगा नहीं, लाइक यूनिटेक जो वो गिरते ही चला जा रहा है, या फिर कोई और द स्टॉक जो मेरे गिरते ही चले आ रहा है, कभी रुकने ही बंद नहीं हुआ, मैं ऐसे स्टॉक की तो बात करूँगा नहीं। आई विल टॉक सम गुड कंपनीज शेयर, दो द कंपनी फंडामेंटल्स आर गुड बट स्टिल इट इज़ फॉलिंग, like SBI which has fallen in 2016 and 2014, we are going to discuss about those stocks। तो हम उन्हीं शेयर्स की बात करेंगे, ठीक है, कि भाई इतना गिर रहा है, कब रिवर्स होगा। अब भी जैसे कि अभी आप देखो इस करंट मंथ में हमारे फार्मा स्टॉक्स और IT स्टॉक्स बहुत गिर रहे हैं। डेफिनेटली इट विल बॉटम आउट आफ्टर फ्यू मंथ्स और मे बी फ्यू वीक्स, देन इट विल स्टार्ट शोइंग द रिवर्स ट्रेंड, तब हमको वहाँ पर उसको ट्रेंड को पकड़ना होगा, ठीक है। अभी ऐसे रिवर्सल ट्रेंड किसका आया है, PSU बैंक का आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि PSU बैंक कैसे रिवर्सल आया और कैसे हम पकड़ सकते थे। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया पैटर्न, डबल बॉटम आउट। सेकंड मेरा पैटर्न है ट्रिपल बॉटम आउट। सेम थिंग है, कुछ नहीं है, मेरा यहाँ पर गिर रहा है, पहला बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, लेकिन दूसरे बॉटम से भी जो अब जाना चालू हुआ फिर वो सस्टेन नहीं करा, फिर वो नीचे गिर गया। 3 बॉटम, इट कैन बी 4 बॉटम, इट कैन बी 5 बॉटम, बट जनरली ट्रिपल बॉटम हमको
से यहाँ से हमारा अप जाना चालू हो जाता है। मे बी इट विल कम हेयर एंड देन आफ्टर दैट विल गो अप, बट दिस will be for how many days we don't know. It could be 1 week, it could be 1 month, it could be 3 4 5 months, 1 year etc. ये बॉटम पे यहाँ पर कितने दिन रहेगा वो हमको नहीं पता है ना। अब एक क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई यहाँ पर डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम और सिंगल बॉटम तो है नहीं। सिंगल बॉटम भी रहता है, इनडायरेक्ट वे में रहता है। वो कैसे रहता है? इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में रहता है। कैसे? मेरा स्टॉक गिर रहा था, ये मेरा एक बॉटम बना, लेकिन इसके पास में दो मेरे शोल्डर हैं। ये अगर आप देखोगे, ये हेड है मेरा, ये शोल्डर 1, ये शोल्डर 2। तो इसको बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कि मेरा स्टॉक गिर रहा है, यहाँ से उन्हें वापस लेने की कोशिश की, फिर गिरा, वो यहाँ पर मेरा हेड होगा। और जो मेरा जो सपोर्ट जोन होगा, सपोर्ट जोन जनरली यू विल फाइंड इन दिस बिटवीन टू। उसने यहाँ पर एक पीक मारा होगा, लेकिन वहाँ से वो रिवर्स मार देगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर वहाँ से मेरा जो ऊपर जाना चालू हो गया, और उसने जो पुराने जो रेजिस्टेंस तोड़े, तो मैं बोल दूँगा ब्रेकआउट हो गया, मतलब यहाँ से मेरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। दूसरी बात, रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रेजिस्टेंस मैं ओल्ड देखूंगा, और जनरली जब मेरे 3-4 बॉटम हो जाते हैं तो मैं इस रेजिस्टेंस, इसको भी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो रेजिस्टेंस फील कर रहा है। बट जनरली यू विल नोटिस दैट जो मेरा ये जो रेजिस्टेंस है वो पहले यहाँ पर एक सपोर्ट रहा होगा, और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। फोर्थ पैटर्न जो है रेक्टेंगल पैटर्न। Rectangle pattern, I am telling you, it's very useful pattern, but it is more helpful if you will get the opportunity to combine these pattern, like double bottom is happening and you are getting the rectangle, or inverse head and shoulder pattern is there and then you are getting the rectangle. What does it mean? Let's understand this mentality. What happens after the triple bottom out, or let's say after the inverse head and shoulder pattern, मेरा यहाँ से जो मेरा जो वीक जोन था, उस वीक जोन से तो मैं निकल गया, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। उसके ऊपर मैं अब नॉर्मल, यहाँ जो वीक जोन था यहाँ से तो निकल गया, अब मैं यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड कर रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो स्टॉक, मतलब समझ रहे हो, एक अपनी हामी बढ़ रहा है, लाइक बोलते हैं ना, काम बिफोर द स्टॉर्म, वो यहाँ पर हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। उसके बाद जो ऐसा भागेगा ना, वो आप पकड़ नहीं पाओगे। और ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए, कि पहले जो पैटर्न तोड़ा उन्हें, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल बॉटम जो भी उसने वो तोड़ा है, फिर वहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है। उसके बाद जब वो ऊपर जाएगा तो बहुत मस्त भागेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रेक्टेंगल अब नॉर्मल भी आपको मिल सकता है कि बॉटम आउट हो गया है मेरा, उसका रेक्टेंगल मेरा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके बाद मेरा फाइनली यहाँ रिवर्स हो गया। और रेक्टेंगल हमारे टॉप हाई लेवल्स पर भी हो सकते हैं, लो लेवल्स पर भी हो सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लो लेवल, बिकॉज वी आर discussing in this video about a trend reversal stock. Similarly, this double bottom out can be double top also, which gives the strategy to exit, which we are not going to discuss in this video when to exit. Right now we are discussing when to enter. Similarly, triple bottom out, it can be triple top also. Similarly, inverse head and shoulder pattern, it can be head and shoulder pattern also proper. I will show this, like how this is head is there, just reverse this pattern whole, you will see properly. Now you can see that this is your head and these are the two shoulders. तो ये हमारा inverse head and shoulder pattern रहता है, ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बीच में ये पीक मिलेगा हमको, बट वेदर दिस पीक, जैसे कि इसकी बात करते हो कि सेकंड बॉटम आया, मैं बोलूँगा कि ये मेरा यहाँ पर रिवर्स हो गया है, बट देयर आर चांसेस ऑफ द थर्ड बॉटम आउट ऑल्सो। तब मेरे को कैसे पता चलेगा कि अब मैं यहाँ पर लूँ या नहीं लूँ? ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन के लिए वी विल यूज़ द कैंडल्स, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वी विल यूज़ द कैंडल्स। और कैंडल का भी एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दिया है कि ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, बस मैंने वही बताया और वही ज़रूरी है अभी हमारे लिए। तो मैं फॉल्स ब्रेकआउट को या फॉल्स रिवर्सल स्टॉक्स को कैसे अवॉइड कर सकूं विद द हेल्प ऑफ द बियरिश कैंडल्स, अब मैं वो देखता हूँ। तो पहली कैंडल होती है मेरी इवनिंग स्टार। ये कैंडल क्या बताती है कि मेरी ये तो यहाँ पर बुलिश कैंडल थी। बुलिश कैंडल क्या है, मेरा यहाँ पर ओपन हुआ और हाई पे मेरा क्लोज हुआ। उसके बाद ये मेरी कैंडल है बियरिश, मेरा
ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, मेरी बन गई रेड कैंडल। और मेरी अगर अगली कैंडल भी ओपन इस पर हो रहा है, लास्ट वाले क्लोज से ओपन मेरा कम पर हो रहा है और मेरी क्लोजिंग और कम पर हो रही है, तो बन गया मेरा इवनिंग स्टार। दैट मीन्स इफ दिस कैंडल यू आर फाइंडिंग आउट इन दीज ब्रेकआउट्स, दैट मीन्स दिस इज द फॉल्स ब्रेकआउट, this is the false reversal. Don't enter into these stock until you get the confirmation. सेकेंड कैंडल जिसको मेरे को अवॉइड करना, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या होगा आपका कि मेरी एक कैंडल जो होगी वो ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल मेरी रेड होगी, लेकिन जो रेड कैंडल होगी वो इसको इनगल्फ कर रही होगी, पूरी कैंडल को इनगल्फ, पूरी कैंडल को निगल रही होगी, तो ये मेरी होगी इनगल्फ, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल्स। इसको भी मिलता है तो मेरा फॉल्स रिवर्सल है। तीसरी मेरी कैंडल कौन सी हो सकती है, डार्क क्लाउड कवर। इसका मीनिंग क्या होता है कि मेरी ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका मिड पॉइंट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर कि मेरा, और मिड पॉइंट में हाई लोज का नहीं देखूंगा, ओपन और क्लोज का मिड पॉइंट देखूंगा। और मेरी नेक्स्ट कैंडल अगर हाई तो ओपन तो मेरी इससे ज़्यादा पर हुई है, लेकिन क्लोजिंग मेरी अगर मिड पॉइंट से नीचे पर हुई है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो द फॉल्स, आई विल नॉट एंटर इनटू दिस स्टॉक। तो जब भी मेरा रिवर्सल होगा, आई विल कंफर्म विद द हेल्प ऑफ दीज कैंडल्स, अदरवाइज आई विल अवॉइड, better to avoid those stocks because there are more than 6000 of stocks, so better to avoid those stocks. now अब क्वेश्चन आता है कि मैं कंफर्म कैसे करूँ। कंफर्म मैं कैंडल से ही करूँगा, वो ऐसे, ये रहे मेरी कैंडल्स, 4 कैंडल्स जो रिवर्सल कंफर्म दे देगी। फर्स्ट कैंडल कौन सी है, बुलिश इनगल्फिंग, सेम लाइक दिस, बियरिश इनगल्फिंग, नाउ बुलिश इनगल्फिंग, इसने पूरा इसको इनगल्फ कर लिया। सेकेंड कैंडल मेरी कौन सी है, सेकेंड पैटर्न मेरा कौन सा, मॉर्निंग स्टार, लाइक दिस। मेरा यहाँ पर इवनिंग स्टार बना था, इसका जस्ट अपोजिट मेरा मॉर्निंग स्टार। तो पहली कैंडल मेरी कौन सी, बियरिश, ये मॉर्निंग यहाँ से। अगर मेरे को ये कैंडल्स मेरे को मिलेंगी ब्रेकआउट पे या रिवर्सल पे, तो मेरे लिए आई विल एंटर। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल, 3 वाइट सोल्जर्स, इट मीन्स कंटिन्यूसली 3 ग्रीन कैंडल्स। एंड द फोर्थ कैंडल बुलिश पियर्सिंग लाइन, सेम लाइक डार्क क्लाउड कवर। इसमें क्या हुआ मेरा कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये है, जो मेरा ओपन हुआ वो इससे कम पर होना चाहिए लास्ट क्लोजिंग से, लेकिन जो हाई होना चाहिए वो इस मिड पॉइंट से जाना होना चाहिए। कंफर्म कि मेरा रिवर्स मेरा हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, डबल बॉटम आउट देखा, देन ट्रिपल बॉटम आउट, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रेक्टेंगल हम लोग कंबाइंड करेंगे अपने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ट्रिपल बॉटम आउट से। उसके बाद हमारे कैसे अवॉइड कर सके बियरिश के, इवनिंग स्टार, बियरिश इनगल्फिंग डार्क क्लाउड कवर से, और कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू डायरेक्टली एक्शन। नाउ विल सी सम एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है एसबीआई का। मैंने एसबीआई का ऑलरेडी खोल रखा है चार्ट, मैं इसको 1 डे का कर देता हूँ, तो मेरा चार्ट है। ठीक है, तो जनरली चार्ट हमारा कैंडल में रहता है, ऐसे मेरा चार्ट रहेगा जब आप ओपन करोगे। आई एम यूजिंग ज़ीरोधा, इज़ अ वेरी गुड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो अब मेरा ये ओपन हो गया। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको इसका व्यू बदलना है, क्योंकि कैंडल से कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है शुरू में, मेरा मतलब समझ में नहीं आता है बहुत क्लियर। तो आई विल चेंज द व्यू टू द लाइन व्यू। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या बन रहा, बहुत कन्फ्यूजन रहता है वो। तो मैं क्या कर दूँगा, उसको लाइन व्यू कर दूँगा। लाइन व्यू में क्या रहेगा, हर एक दिन की जो क्लोजिंग है वो दिख रही है। नाउ इट्स बेटर कि मेरा क्या हो रहा है। लेट्स रिमूव दिस लाइन, विल पुट द न्यू लाइन्स अगेन। ठीक है, अब मेरा ये स्टॉक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालना चालू करेंगे। तो एक तो मेरा ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ डाल दो एक लाइन। उसके बाद ये मेरा एक सपोर्ट जोन है, वेरी गुड। उसके बाद मेरा एक ये सपोर्ट जोन है, वेरी गुड। एक मेरा ये रेजिस्टेंस जोन था उस टाइम पे, वेरी गुड। नाउ as I told you in the last video, whatever lines I have drawn, I need to confirm with the previous data. Let's check.
तो मेरी ये जो लाइन है, ये लाइन मोर और लेस ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। उसके बाद मेरा ये भी ठीक है मोर और लेस, यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस फील हो रहा था, यहाँ पर भी इसको कहीं ना कहीं आसपास रेजिस्टेंस फील हुआ है, तो मतलब ये लाइन भी मेरी ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा और नीचे कर सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर लगभग बन रही है, ठीक है। और देखो आप, ये जो मेरा था, ये जो मेरा रेजिस्टेंस जोन था, वो देखो पीछे आप ये सपोर्ट जोन रहा है, ये देखो आप यहाँ पर जब वो टूट रहा था, तो मतलब ये भी मेरी लाइन ठीक है। ये यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस जोन रहा है, तो मेरी लाइंस तो मोटा मोटी मेरी ठीक बन गई हैं। ये मेरी लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है। नाउ विल सी द डबल बॉटम आउट पैटर्न हियर। कैन यू सी दिस डबल आउट पैटर्न? यस, देयर इट इज, डबल आउट पैटर्न, डबल बॉटम आउट। तो सबसे बड़ी बात क्या, मेरा स्टॉक गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब आप बोलोगे मेरा बॉटम आउट तो यहाँ पर भी हो गया, मेरा बॉटम आउट यहाँ पर भी हो गया, बॉटम आउट यहाँ पर भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन भैया 3-4 दिन वेट तो करो, थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन वो क्या पिछले मेरे रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा है? नहीं तोड़ पा रहा है। यहाँ पर वो आके गिरा, 1-2 दिन रुका, फिर आ गया, 1-2 दिन रुका, फिर गिरा, आ गया, उसके बाद नहीं तोड़ा है वो। फिर अब मेरा ये ऊपर जाना यहाँ से रिकवर होना चालू हुआ है। उसके बाद देखोगे आप, ये यहाँ पर इसको, मेरा जो रेजिस्टेंस है इसको नहीं तोड़ा है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मेरी एक ये भी रेजिस्टेंस लाइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा रिवर्स हो सकता है अगर यहाँ पर इसने सही से सस्टेन किया। बिल्कुल हो सकता है कि मेरा यहाँ पर आने के बाद उसने यहाँ से ऊपर जाना चालू हो जाए, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी। बट दिस विच हैज़ गॉन अप, वी नीड टू कन्फर्म, we need to confirm with the help of what? With the help of candles. Now let's check these candle how the pattern is. So तो मैंने जो बड़ी की है, ये देखो, ये तो खैर पारी नहीं की, ये कैंडल देखो आप, ये ऊपर मेरी ग्रीन कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, मेरा ये क्या बन गया है? मोर और लेस ये मेरा इवनिंग स्टार बन गया है, बड़ी कैंडल। उसके बाद मेरी ये बना दोजी, एंड दोजी कैन बी ग्रीन, कैन बी रेड, डजंट मैटर। दोजी का मतलब क्या होता है कि मेरा लगभग उसी के आसपास ही बंद हुआ है। उसके बाद मेरी रेड कैंडल बनी, मतलब दैट मीन्स दिस इज द फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स रिवर्सल। सिमिलरली आप ये देखो, वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल, ये भी मेरा एक इवनिंग स्टार बना, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर मेरा यहाँ पर क्या बना? ग्रीन, रेड, रेड, और ये जो रेड है इससे ऊपर और ये जो रेड है इससे नीचे, और ये बंद हुआ, मीन्स दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स रिवर्सल। तो इन कैंडल्स की हेल्प से आप अपने जो स्टॉक्स हैं उसके जो हमारे रिवर्सल होते हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो। अब मैं आगे जाता हूँ, ये जो मेरा ये जो रेजिस्टेंस था, अब देखो यही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, जो 2 बार रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, कैसे ब्रेक हुआ है? विद द हेल्प ऑफ 3 वाइट सोल्जर्स, 1 2 3 4 इवन 5। तो यहाँ पर तो कंफर्म ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको ध्यान देना पड़ा। अगर आपने ये बात समझ ली, देन इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द रिवर्सल स्टॉक। ये मेरे फॉल्स रिवर्सल, ये फॉल्स रिवर्सल, बट दिस इज़ द कंफर्म रिवर्सल जो मैंने आपको यहाँ बताया था लास्ट स्लाइड में। ये मेरा 3 वाइट सोल्जर्स, तो मेरा यहाँ पर ये कंफर्म हो गया। 3 4 5 वेरी गुड मेरा। और आप यहाँ नीचे वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं, दैट मीन्स दिस इज़ द कंफर्म। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ स्टॉक को बाई कर लूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए भी एक है, लेकिन टेक्निक है, बट इट्स लिटिल बिट रिस्की। तो रिस्क लेने से क्या फ़ायदा? हम 100% श्योरिटी पे ही करें ना काम। इतना हार्ड अर्न मनी है और थोड़ा सा रिस्क लेने चलते कि मेरा बिल्कुल 52 वीक लो पे चल रहा है, हम बाई कर लेता हूँ, नहीं भैया, थोड़ा वेट करो। मेरा जो पुराने जो मेरे रेजिस्टेंस हैं, ये सपोर्ट्स हैं, उसको से पार करने दो, फिर मैं बात करूँगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका जब भी बॉटम आउट होता है, जो भी पैटर्न बनता है, उसके बाद आप कंफर्म करो अपनी कैंडल से। चलिए अब मैं दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक मेरा ये है, मैंने इसको पहले से ही उसमें रख रखा है लाइन चार्ट में। ये आपका कैंडल में ऐसे दिखेगा, लेकिन मैंने इसको लाइन में कर रखा है। तो फटाफट हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं,
अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं। चलो एक तो ये हो गया मेरा, दूसरा मेरा ये भी है, बिल्कुल है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। एक मेरा ये भी, इसमें तो बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक मेरा ये हो गया, वेरी गुड, कितना अच्छा, मतलब ये इसका सपोर्ट जोन है एनसीएल इंडस्ट्री का 110 लेवल्स पर। और एक मेरा ये हो गया। चलो अब मैं इस बॉटम आउट की बात करता हूँ जो यहाँ पर है 3 बॉटम आउट। स्टॉक मेरा गिर रहा था, यहाँ पर आके उसने कंसोलिडेट, आप बोलो यहाँ पर ही वापस हुआ, लेकिन मेरा इसने जो पुराने जो रेजिस्टेंस जोन था उसको नहीं तोड़ा है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली गिर रहा था। उसका जब वो उठाए उसको, इस रेजिस्टेंस को मेरा नहीं तोड़ा, तो आ गया उसका नीचे गिरा, पहला बॉटम आउट, दूसरा बॉटम आउट, तीसरा बॉटम आउट। और मैंने आपको क्या बताया था, मैं कब रिवर्सल मानूंगा, जब मेरा पुराना जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन है वो तोड़ेगा। वो उसने यहाँ पर मेरा बन रहा था, क्योंकि इससे पहले ये भी हो सकता है, ये भी मान सकते हो आप, बिल्कुल मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो आप, इसको मानोगे तो और अच्छा है, बिल्कुल मान सकते हो ये भी आप। तो मेरा अब मैं यहाँ पर इसे कंफर्म करूँगा कि मेरा ब्रेकआउट या फिर रिवर्स मेरा कंफर्म हुआ या नहीं हुआ है। अगेन आई एम सेइंग इट्स डिफिकल्ट टू बाय एट 84 लेवल्स, मे बी स्टॉक कैन रीच टू दिस लेवल ऑल्सो, इट कैन रीच टू 62 लेवल्स ऑल्सो, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ सपोर्ट जोन, और मे बी दिस स्टॉक कैन गो टू दैट लेवल ऑल्सो, 48 levels, we don't know. Let stock consolidate and then let stock start moving up, and then let the stock cross the just previous support or resistance line. अब मेरा ये जो ब्रेक हुआ है मैं इसको कंफर्म करूंगा अगेन विद द हेल्प ऑफ कैंडल। तो अब मैं कैंडल को देखता हूँ, ये मेरी जो कैंडल है वो मेरी कैंडल, मेरा ये बना है, और ये मेरी ग्रीन कैंडल, ऊपर ये कैंडल, दैट मीन्स दिस इज द ब्रेकआउट और ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉक को बाय कर लूँगा, एंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ व्हाट, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस सपोर्ट जोन विच इज़ 85 लेवल्स। उसके बाद मेरा स्टॉक थोड़े दिन यहाँ पर रहा, तो उसके बाद फिर वो हमारा अप होता चला गया है। उसके बाद मेरा स्टॉक नहीं अप नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट होने का नीचे आया है, लेकिन बाद में वो उसका हमारा बढ़ता चला गया है। इसको मैं थोड़ा व्यू लाइन करता हूँ, हाँ। तो यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद एक्चुअली ये जो मेरा था आपका रेजिस्टेंस जोन था, उसको वहाँ से क्रॉस होने के बाद मेरा यहाँ पर कौन था 110 लेवल से मेरा 140 लेवल्स तो गया, लेकिन यहाँ से बाद में उसने रिवर्स मार दिया। अब यहाँ से क्यों रिवर्स मारा, यहाँ मेरे को एग्जिट कर लेना था स्टॉक में, इस लेवल पर क्यों एग्जिट कर लेना था वो हम बाद में देखेंगे। अब एक मेरे को अभी जस्ट एक पैटर्न दिखा, वो ये रहा, कोई बता सकता है क्या है अभी, ये मेरा क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये मेरा हेड रहा, ये मेरे 2 शोल्डर हैं, और हेड एंड शोल्डर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिलेगा, थोड़ा टेढ़ा मिलेगा। हेड बिल्कुल एक पीक रही होगी एक दिन के लिए, उसके बाद 2 मेरे शोल्डर रहेंगे। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये मेरे को मिला, उसके बाद मेरे को ये जो प्रीवियस मेरा ये जो हमारा ये चला आ रहा है सपोर्ट जोन, इसको इसने क्रॉस भी किया, और अब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ आगे। लेट्स सी दिस स्टॉक विद द कैंडल की मेरा ब्रेकआउट हुआ ही नहीं हुआ है। फर्स्ट बिल्कुल हुआ है जी, मेरे को ग्रीन कैंडल मिली है, और आगे भी 1-2 ग्रीन कैंडल मिली, बिल्कुल हुआ, आई विल बाय। बट मेरा यहाँ पर आगे जाने के बाद नेक्स्ट मेरा जो जोन था उसको क्रॉस नहीं कर पाया अराउंड 1 मंथ के लिए, और मेरा स्टॉक इस रीजन में मूव करने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ रीजन में क्लोज करने लगा। तो मेरा ये क्या बन गया है, ये मेरी बन गई अभी रेक्टेंगल। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं, आइदर डबल बॉटम आउट, ट्रिपल बॉटम आउट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न विद रेक्टेंगल इन द बॉटम, मैं बता रहा हूँ उसके बाद जब वो रेक्टेंगल टूटेगा पैटर्न, आप उसके बाद बाई कर लो, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। मैं आपको ऐसे भी 2 स्टॉक और दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बाई कर लो आप,
क्योंकि ये मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न टूटा है, पीक मार के यहाँ से वापस आया है, पुराना उसने सपोर्ट में भयंकर अपने आप को मजबूती रखते ऊपर गया, उसके बाद जो पुराना जो उसके जो एक और जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर, और जो पहला वाला सपोर्ट था उसमें रीजन में रहा है कुछ दिन, और एक दो दिन वाला मैंने बोला ये रहा है एक महीना, बहुत मतलब एक महीना यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, और उसके बाद जब वो ये ऊपर जाएगा तो मैं बाई कर लूँगा. बट अगेन आई विल कन्फर्म विद माई कैंडल्स. सो लेट्स चेक दीज कैंडल्स. पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाइट सोल्जर, ये वाइट सोल्जर, ये वाइट सोल्जर, ख़त्म. I will buy this stock at 130 levels. Now see the stocks which is trading at 250 levels. जो स्टॉक मैंने यहाँ बाई किया 130 लेवल्स पे, वो मेरे को 220 लेवल्स पे स्टॉक मिल गया है आज. So that's the power of the reversal stocks, because here the risk to reward ratio is more. Secondly, मैं कंफर्म कर रहा हूँ अपने रिवर्सल को विद रेक्टेंगल पैटर्न जो मेरे को मिला है एंड विद कैंडल्स. तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं, जस्ट आप स्टॉक्स को बाय करो. अब मैं एक स्टॉक दिखाता हूँ आपको, बैंक ऑफ इंडिया, जो आजकल बहुत नाम में है. नाउ लेट्स सी दिस. तो मैं अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊँगा. ये मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने यहाँ पर एक लाइन मार दी, ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन था, एक मैंने ये मार दी लाइन, उसके बाद एक देख रहे हो आप कि यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एक टाइम पे ये इसका रेजिस्टेंस जोन था. दैट्स द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन. अब मैं कंफर्म करूँगा ये चार लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है कि सही करी है गलत करी है. लेट्स गो बैक टू प्रीवियस डाटा, लेट्स चेक. सी ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं मेरी यहाँ रही हैं, और पीछे जाता हूँ, अब मेरा एक ही लाइन यहाँ रही है, यहाँ भी बना लेता हूँ मैं. अब ये स्टॉक पता है ये आज गया है ना, अब ये थोड़ा रेजिस्टेंस फील करने वाला है 190 लेवल्स पर, और ये 190 लेवल्स क्रॉस कर लेगा देन वी कैन सी दिस 250 लेवल्स. बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, विल डिस्कस सम अदर. लेट्स do the data of 1 week so that we can see more candles, more data. See here, wow, very good. मतलब ये जो मेरा 2016 में जो बॉटम आउट हुआ था वो मेरा 10 साल पहले भी यही बॉटम आउट हुआ था. मतलब ये तो बहुत शानदार बॉटम आउट हुआ है मेरा. 10 साल पहले मेरा जो बॉटम आउट मिला, 10 years अगो. और आप देख रहे हो जो हमने भी यहाँ पर लाइन बनाई वो 10 years पहले भी यहाँ पर थी. देख रहे हो अब यहाँ पर इसको ये रहा, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जोन रहा है, उसके बाद ये सपोर्ट जोन बन गया मेरा. So that's the beauty of the support and resistance. I'm telling you, if you have not watched the previous video, watch it for the more clarification of the support and resistance line. Now let's analyze these area. Let's analyze this area with the help of the one day view. तो अब मेरा यहाँ पर स्टॉक ये था, तो मेरा यहाँ पर आके फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम, उसके बाद अगर आप देखोगे मेरा स्टॉक मेरा बॉटम आउट यहाँ पर होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो भी ये भी मेरा शुरू में जब बॉटम आउट ऊपर होने की कोशिश कर रहा था, ये ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो एक ये भी कहीं ना कहीं मेरी ये भी एक रेजिस्टेंस लाइन है बॉटम आउट के टाइम पर. 80 से 130 अराउंड 20%, 30%. अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जब ऊपर गया उसके बाद ये मेरा स्टॉक अराउंड जून से लेके इस अप्रैल तक ये मेरा स्टॉक किस में रहा है, रेक्टेंगल जोन में रहा है. यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक मेरा मूव ही नहीं कर रहा था, और उसके बाद जब ये यहाँ से 140 लेवल से टूटा है ऊपर, वो आप देख लो 190 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है. तो पहले मेरा डबल बॉटम आउट बना, डबल बॉटम आउट बनने के बाद उसके बाद ये रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल ऑब्वियसली हुआ तो थोड़ा मेरा ऊपर बनेगा, और जब इसके बाद ये ऊपर निकल गया फिर ये भागेगा, और अब ये और भागेगा. आई एम टेलिंग यू, मे बी इट विल फील लिटिल बिट रेजिस्टेंस here, but it will move further also. Now there are some good news also coming about the banks, but let's confirm this with candle also. Let's see how is the candles here.
सी 1 सोल्जर 2 सोल्जर 3 सोल्जर डन, ट्रेंड रिवर्सल डन। उसके बाद मेरा यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा था रेक्टेंगल में, लेकिन एक बार जब ये यहाँ से निकल गया फिर देखो आप कहाँ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का अपन ने देखा। एक स्टॉक और देखते हैं फॉर द टुडेज लास्ट विच इज सूर्य रोशनी। हियर मेरे को यहाँ पर मिला है inverse head and shoulder pattern. Let's see where, but first of all we'll draw the support and resistance line. तो एक तो मेरी साफ दिख गया, ये मेरा यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद एक मेरा ये भी है, और उसके बाद मेरा एक ये भी है, और एक मेरा ये भी है। ठीक है को बता सकता है मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया। ये मेरा क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। स्टॉक मेरा गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसके बाद इसने मेरा ये बनाया, इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, कब मेरा बना था, ये दिसंबर 2016 में। उसके बाद से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रैल तक, ये क्या डेट है, 180 200 के लेवल्स अप्रैल तक मेरा वहीं पर ही कंसोलिडेट करा है, इस रेंज में 195 के लेवल्स पे। इससे ऊपर मतलब ये मेरा क्या बन गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर एक मैं वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन का ऑप्शन है, चलो मैं ऐसे खींच देता हूँ। ये मेरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। उसके बाद ये मेरे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फिर यहाँ से मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को क्या मिला, रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल जोन हो गया मेरा, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद वो आ गया इस कंसोलिडेटेड जोन में, एंड दैट टू 4 months, which means it's very bullishness can come if it will break these levels, which has broken at 197 levels. That means just buy the stock at these levels. But now we'll confirm this with candles here. 1 white soldier, 2 white soldier, 3 white soldier. That means ये यहाँ से निकल गया मेरा। Can you see those white soldiers? See 1 2 3, मतलब यहाँ से निकल गया है। उसके बाद जब मेरा यहाँ ब्रेक हुआ 1 2 3, अब देखो ये मेरा यहाँ पर था, नहीं निकल पा रहा था, जब भी जाता था 1 2 बना रेड कैंडल, फिर 1 2 बना रेड कैंडल, लेकिन अब ये 1 2 3 4 बाहर निकल गया। अब देखो 290 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 50% रिटर्न विद इन 1 month। So that's the power of the combination of different patterns also। अगर आप हेड एंड शोल्डर को, और आपको उसका चैनल मिल रहा है, या फिर बॉटम आउट होने के बाद आपको चैनल मिल रहा है, आई एम सेइंग इट्स वेरी गुड फॉर द स्टॉक। लेट्स वेट, कंसोलिडेट होने दो, और आपको एवरेज आउट करना है, एवरेज आउट करो। उसका जैसे ही अपर जोन में मिलता है आप उसको तुरंत और बाई करो, और उसके बाद आप शांति से बैठो। और कब स्टॉक से कब निकलना है वो मैं आपको बाद में वीडियोस में बताऊंगा। अभी हम लोग एंट्रीज़ की डिस्कस कर रहे हैं, कब निकलना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू like this video, then please like it, subscribe it, post the comment, so that it will give me the motivation for further studies, and so that I can share more knowledge with you all. And if you want to join with me on Facebook, then you can join with me here on my group Stock Market Technical Analysis. Here I post my calls, my recommendations, or whatever I feel that it has given the breakouts. Here, this is my Facebook group page, Stock Market Technical Analysis, so you can join here as well. Thank you very much. All the best. Have a happy investing. Thank you.